گرینڈ الائنس پنجاب کا سول سیکریٹریٹ کے باہر احتجاج دوسرے روز میں داخل ہو گیا ہے۔ الائنس میں محکمہ تعلیم پنجاب کے اساتذہ اور دیگر سرکاری ملازمین شامل ہیں۔ احتجاجی مظاہرے میں پنجاب بھر کی خواتین اساتذہ بھی شامل ہیں۔ مطالبات کی منظوری تک یہ دھرنا جاری رہے گا، یہ کہنا ہے مظاہرین کا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں آفاق نذیر سے۔ جی آفاق، بتائیے گا مظاہرین کا کیا کہنا ہے؟ جی، گرینڈ الائنس پنجاب جس میں محکمہ تعلیم پنجاب کے اساتذہ اور دیگر سرکاری ملازمین شامل ہیں، ان کی جانب سے سول سیکریٹریٹ کے باہر احتجاجی مظاہرے کا آج دوسرا روز ہے، جس میں وہ اپنے مطالبات لیے یہاں پر موجود ہیں۔ کیا ان کے مطالبات ہیں، انہی کی زبانی آپ کو سنواتے ہیں۔ بتائیے گا کیا مطالبات ہیں؟ دیکھیں جی، ہم نئی چیز کوئی گورنمنٹ سے نہیں مانگ رہے۔ ہمیں جو پہلے سے مراد ملی ہوئی تھی وہ گورنمنٹ نے چھینی ہے، وہ ہم مانگ رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہماری پینشن گریجویٹی تھی جس پہ کٹ لگایا گیا ہے، اس کے علاوہ ہماری لیو انکیشمنٹ تھی جس پہ کٹ لگایا گیا ہے، رول 17 یہ ہمارا ختم کر دیا گیا ہے، 30% ڈسپیرٹی الاؤنس جو وفاق نے دیا تھا وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا۔ یہ ہمارے جائز مطالبات ہیں۔ یہ ہمارا مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ ہے کہ یہ جو کٹ لگائے گئے ہیں یہ ہمارے واپس کیے جائیں۔ ہم نئی چیز کوئی نہیں آپ سے مانگ رہے، یہ جو آپ نے چھینا ہے یہ ہمیں واپس کیا جائے۔ بالکل جی، اس احتجاجی مظاہرے کو جو لیڈ کر رہے ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ ان کی ایڈیشنل سیکرٹری سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ آپ بتائیے گا ملاقات میں پھر کیا آپ نے جو ہے وہ اپنے مطالبات رکھے ان کے آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفقر سول سندھو صوبائی صدر ابکا پنجاب، سب سے پہلے تو میں 42 کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں سننا اور ہماری آواز آگے پہنچانے کا جو عزم کیا، اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کل 12 بجے سے ہم یہاں پر موجود ہیں، تقریباً 48 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ کل 7 بجے ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن ہیں مدثر شاہ صاحب، انہوں نے ہمیں بلایا اور کہا کہ آپ بتائیں آپ کے کیا مطالبات ہیں۔ جس طرح مطالبات بتائے گئے ان سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ میں حیت سے بات کرتا ہوں اور آپ سے مکمل تعاون ہوگا، آپ کے جائز مطالبات ہیں اور انشاءاللہ پورے ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد آج تک نہ انہوں نے بلایا نہ کسی حیت نے بلایا، اور جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے یہ دھرنا جاری رہے گا انشاءاللہ۔ بالکل جی، 45 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی ان کے مطالبات ابھی تک تسلیم نہیں ہو سکے۔ ان کا یہ دو ٹوک اعلان ہے کہ جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں ہو جاتے وقت تک یہ جو پروٹیسٹ ہے وہ جاری رہے گا۔ جی بالکل، مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا۔ آفاق نذیر ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ پولیس میں احتساب و اصلاحات کے مریم کا انصاف پروجیکٹ لانچ کر دیا گیا۔ 58,000 سے زائد شکایات کے بعد پولیس نظام میں اصلاحات ہوں گی۔ ناقص تفتیش اور مقدمات میں تاخیر پر زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ۔ شہریوں سے بدسلوکی کرنے والے اہلکاروں کے خلاف فوری کارروائی کا میکانزم تیار کر لیا گیا۔ تمام آپریشنز کی ویڈیو ریکارڈنگ لازمی ہے۔ شفافیت یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شکایات کے فوری ازالے کے لیے گزٹڈ آفیسر براہ راست ذمہ دار ہوگا۔ پولیس افسران کی جواب دہی کے لیے نیا سخت احتسابی نظام تشکیل دیا جائے گا۔ پنجاب پولیس میں احتساب کا بڑا آپریشن ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے انصاف پروجیکٹ لانچ کر دیا۔ 58,000 سے زائد شکایات کے بعد پولیس نظام میں ہنگامی اصلاحات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ناقص تفتیش اور مقدمات میں تاخیر پر زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ کی گئی ہے۔ شہریوں سے بدسلوکی کرنے والے اہلکاروں کے خلاف فوری کارروائی کا میکانزم تیار کیا جائے گا۔ تمام آپریشنز کی ویڈیو ریکارڈنگ لازمی ہوگی۔ گرفتاری اور چھاپوں کے SOPs دوبارہ تیار۔ اختیارات کا غلط استعمال روکا جائے گا۔ شکایات کے فوری ازالے کے لیے گزٹڈ آفیسر براہ راست ذمہ دار ہوگا۔ 2 سالہ ریکارڈ کی چھان بین، کارکردگی کی بنیاد پر کارروائی ہوگی۔ نیٹ میٹرنگ پالیسی ختم، نیٹ بلنگ کا نفاذ، یونٹ کے بدلے یونٹ ختم، 11 روپے کا لے کر 40 سے 50 روپے کا یونٹ ملے گا۔ ٹیکسز الگ ہوں گے، شہر کی بزنس کمیونٹی تل ملا اٹھی۔ نیٹ میٹرنگ پالیسی ختم، نیٹ بلنگ کا نفاذ، یونٹ کے بدلے یونٹ ملنے کا سلسلہ ختم ہوا۔ نیپرا سولر صارفین سے 11 روپے کا یونٹ لے کر 40 سے 50 روپے اور 7 ٹیکسز الگ لگائے گا۔ نیٹ بلنگ پالیسی کو شہر کی بزنس کمیونٹی نے مسترد کر دیا۔ شہر کی بزنس کمیونٹی حکومت سے شدید مایوس ہو گئی ہے۔ بزنس کمیونٹی تل ملا اٹھی، نیٹ بلنگ پالیسی کو مسترد کر دیا۔ جب لوگ جو ہے وہ سبسٹیٹیوشن کے اوپر جاتے ہیں تو اس کو فوری جو ہے نا اس کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے، اور یہی ہمارا موقع
तवक्कुफ़ हमेशा पिछले काफ़ी अरसे से रहा है कि जो भी पॉलिसीज़ होनी चाहिए वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, क्योंकि इसके वजह प्रॉब्लम ये होती है कि लोग फिर जो है वो नए तजुर्बे करते हैं। जो चीज़ें एज ए मिल एक फैक्ट्री की एक्सपेंशन में लगना चाहिए, उसकी BMR में लगना चाहिए, वो सारा का सारा पैसा जो है वो ज़ाया होके इसी काम में लग जाता है। ऐसी ही पॉलिसी है, हमेशा गवर्नमेंट पॉलिसियाँ बनाती हैं कि सुकून मिले ताजर को, वो ताजर माशी तरक्की में अपना किरदार अदा करे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये सोचती है कि अवाम किस तरह तंग हो और किस तरह उसका बुरा हाल हो। सनतकारों और ताजरों ने कहा कि हुकूमत अवाम कारोबारी बिरादरी से सस्ती बिजली लेकर उन्हें वापस नहीं दे सकती। नेशनल ग्रिड से IPPs की बनी महंगी बिजली क्यों खरीदें? IPPs के ओवर कैपेसिटी चार्जेस की अदायगियाँ क्यों करें? IPPs के ओवर कैपेसिटी मादे कैंसिल किए जाएं। ये अवामी समात के नाम पे जो ढोंग रचाया है पिछले दिनों में, और जिस तरीके से इन्होंने इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून को वायलेट किया है, इस पर ये रिवर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं पुराने, उनको भी और नए कॉन्ट्रैक्ट को भी इन्होंने बिल्कुल ही बुरे तरीके से इसको डैमेज किया है। गवर्नमेंट के ऐवानों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो सी है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो सी है, वो इतनी ऊपर गई है, और उसमें मेजर इंग्रेडिएंट जो सा है वो एनर्जी कॉस्ट है। तो एनर्जी कॉस्ट के लिए एक लोगों के पास रिलीफ मिला था कि वो ये सोलर लगा के कोई अपनी आप को बेहतर करके कोई अपने आप को कंपेटिटिव कर पा रहे थे, आपने वो भी वापस ले लिया। तो जो कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी, ये तो हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। कारोबारी बिरादरी ने कहा कि हुकूमत के कहने पर अवाम ने लाखों करोड़ों रुपए के सोलर लगाए ताकि नेशनल ग्रिड पर लोड कम हो। अब हुकूमत सख्त पॉलिसी करके इसकी हौसला शिकनी कर रही है, इसे मुस्तरद करते हैं। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। सूबे में सरमायाकारी और मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। छोटे और दरमियाने कारोबारों को कर्जों तक रसाई में बेहतरी आएगी। उधर LDA में कमर्शियल जायदादों के मालिकान के लिए बड़ी खबर, जायदाद मालिकान को वन टाइम एमनेस्टी देने की मंजूरी। सूबे में सरमायाकारी और मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। छोटे और दरमियाने कारोबारों की कर्जों तक रसाई में बेहतरी आएगी। नए कारोबारी मौके पैदा होने में मदद मिलेगी। वजीर आला पंजाब के तरजीही फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स की तौसी के लिए बड़ा माली इक़दाम। बैंक ऑफ पंजाब में 3 अरब रुपए की इक्विटी इंजेक्ट करने का फैसला हो गया। बैंक ऑफ पंजाब की कैपिटल स्ट्रेंथ बेहतर बनाने के लिए 3 अरब रुपए की सरमायाकारी हो सकेगी। री एम्प्लॉयमेंट पर पेंशन से मुतालिक सूबाई तरीक़ाकार अब मुअस्सर नहीं रहेगा। रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी करने वाले पेंशनर से मुतालिक पॉलिसी खत्म कर दी गई। अब पेंशन या तनख्वाह में से इंतखाब की सहूलत नहीं होगी। पंजाब हुकूमत ने विफाकी हुकूमत की तर्ज पर पुरानी पॉलिसी खत्म कर दी। विफाकी नोटिफिकेशन वापस, पंजाब ने भी अपना मरासला मनसूख कर दिया। इससे कबल पॉलिसी में रिटायर्ड होने वाले पेंशनर्स को तनख्वाह भी मिलती थी। LDA में कमर्शियल जायदादों के मालिकान को केस मंजूरी के फाइनेंशियल साल के तहत फीस अदायगी की सहूलत होगी। मालिकान को 22.5% अदा करके केस को रेगुलर तौर पर मंजूर कर दिया जाएगा। जायदाद के मालिकान को वन टाइम एमनेस्टी देने की मंजूरी दे दी गई। काबीना की मंजूरी के बाद कानून में तरमीम करके रिलीफ देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इससे कबल नादहिंदगान मालिकान को डिफॉल्ट के बाद नए माली साल का रेट लगाया जाता था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गवाल मंडी शाह अबुल मुआली रोड पर फॉर्म के गोदाम में आग लगने का वाक़या। रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया, जबकि कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। वाक़या 3 मंजिला इमारत की बलाई मंजिल पर दोपहर 2 बजे पेश आया। इस वाक़े के मुतालिक मज़ीद का तफसीलात हैं, जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवाल मंडी के इलाका शाह अबुल मुआला रोड पर, जहाँ पर आज दोपहर 2 बजे के करीब एक 3 मंजिला इमारत में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग बालाई मंजिल पर कायम किए गए एक फोम के गोदाम में बज़ाहिर शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी, जिसमें देखते ही देखते पोर्शन के बेशतर हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। ताहम इतला मिलने पर रेस्क्यू फायर फाइटर्स मौका पर पहुंचे और तकरीबन 2 घंटों की मुसलसल कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इस वाक़े में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता गोदाम में मौजूद भारी मालियत का साजो सामान जल चुका है। दूसरी जानिब में पुलिस भी मौका पर मौजूद रही। पुलिस का ये कहना है कि ये इमारत 3 मंजिला जो इमारत है जहां आग लगी, ये मौलवी जमील नामी एक शख्स की है,
जो अपने अहले खाना के हमरा उम्रा करने गया हुआ है, उसने इस इमारत में एक पोर्शन में फोम का गोदाम बना रखा है और बाकी पोर्शंस में उसने रिहाइश रखी। ताहम हादसे के वक्त मौलवी जमील या उसके अहले खाना का कोई फर्द भी यहाँ पर मौजूद नहीं था, क्योंकि वो उम्रा की अदायगी के सिलसिले में मुल्क से बाहर हैं। पुलिस का कहना है कि जाए वक़ूआ से फोरेंसिक टीमों की मदद से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। आग लगने की वजूहात का तयन भी किया जा रहा है और मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया असरार खान अपडेट करने के लिए। अब यहाँ पर आपको बताएं, मुल्क भर के करोड़ों घरेलू बिजली सार्फिन अजाफी बोझ की जद में आ गए। नेपरा ने घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली है। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। नेपरा की प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस की मंजूरी दे दी गई। पहली बार माहाना 300 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस लगाने की मंजूरी। इससे कबल माहाना 300 यूनिट तक घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस लागू नहीं थे। माहाना 100 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर 200 रुपये फिक्स चार्जेस लगेंगे। माहाना 200 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस होंगे। माहाना 100 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 275 रुपये माहाना फिक्स चार्जेस लगेंगे, जबकि माहाना 200 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस होंगे। माहाना 300 यूनिट तक इस्तेमाल के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 350 रुपये फिक्स चार्जेस लगेंगे। बिल्कुल, माहाना 301 यूनिट से ज़्यादा पर बिजली 1 रुपये 53 तक सस्ती करने की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई है। माहाना 301 से 400 यूनिट तक घरेलू सार्फिन के लिए 1 रुपये 53 पैसे कमी की मंजूरी दी गई है। माहाना 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल पर फी यूनिट में 1 रुपये 25 पैसे कमी होगी। माहाना 600 यूनिट तक के फी यूनिट पर 1 रुपये 40 पैसे कमी होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्क भर के करोड़ों घरेलू बिजली सार्फिन अजाफी बोझ की जद में आ गए हैं। नेपरा ने घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली है। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। नेपरा की प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस की मंजूरी। पहली बार माहाना 300 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस लगाने की मंजूरी दी गई है। जी हाँ, मुल्क भर के करोड़ों घरेलू बिजली सार्फिन इजाफी बोझ की जद में आ गए। नेपरा ने घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है। नेपरा की प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस की मंजूरी। पहली बार माहाना 300 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस लगाने की मंजूरी। इससे कबल माहाना 300 यूनिट तक घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस लागू नहीं थे। माहाना 100 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर 200 रुपये फिक्स चार्जेस लगेंगे। माहाना 200 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस होंगे। माहाना 100 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 275 रुपये माहाना फिक्स चार्जेस लगेंगे। माहाना 200 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस होंगे। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अवैस क्यानी। जी अवैस, बताएगा, नेपरा ने घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली है, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, इसमें पहली बार माहाना 300 यूनिट तक घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस लगाने की मंजूरी दी गई है। इससे कबल माहाना 300 यूनिट तक घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस लागू नहीं थे। माहाना 100 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर 200 रुपये फिक्स चार्जेस लगेंगे। माहाना 200 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस होंगे। 100 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 275 रुपये माहाना फिक्स चार्जेस होंगे। माहाना 200 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस होंगे। 500 यूनिट के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 100 रुपये इजाफे से फिक्स चार्जेस 500 रुपये हो जाएंगे। और इसी तरह माहाना 700 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन जो है वो 125 रुपये उनकी कमी की गई है। और इसी तरह जो है मजीद भी स्लैब्स की जो है दे दी गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस क्यानी अपडेट करने के लिए। महकमा दाखिला पंजाब में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। सदारत सूबाई वजीर चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन व अमान ख्वाजा सलमान रफीक ने की। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने अमन व अमान की सूरत हाल बारे ब्रीफिंग दी। इजलास में इस्लामाबाद इमाम बारगाह बम धमाके के अफसोसनाक वाक़े की शदीद मज़म्मत और मुतासरा खानदानों से इज़हार हमदर्दी किया गया। इजलास में वज़ीर आला पंजाब एजाज़िया प्रोग्राम बराए इमाम मस्जिद पर पेशरफ का जायजा लिया गया। इजलास में मदारस रिफॉर्म्स बारे पेशरफ का भी जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक ने इस मौके पर कहा कि सूबे में पायदार अमन के क़याम के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों के दरमियान मरबूत हिकमत अमली नागुज़ीर है। और यहाँ आपको बताएं कि मशहूर पाकिस्तानी बाइकर और स्टंट मास्टर सुल्तान गोल्डन की सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन से मुलाकात। बिलाल यासीन ने खतरनाक स्टंट्स और आलमी रिकॉर्ड्स के हामिल सुल्तान गोल्डन से याददाश्तों का तबादला किया।
वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासिन ने सुल्तान गोल्डन की गाड़ी का भी मुआयना किया। बाइक और गाड़ियों के स्टंट्स के हवाले से मुल्की सतह पर सुल्तान गोल्डन का नाम पहले आता है। रवां साल हॉर्स एंड कैटल शो में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर स्टंट का मुजाहिरा पेश करेंगे। गुज़श्ता साल सुल्तान गोल्डन ने 1 मील रिवर्स ड्राइवर करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जबकि सुल्तान गोल्डन पाकिस्तान का आलमी सतह पर मुस्बत चेहरा है। ऐवान कारकुनान तहरीक पाकिस्तान माल रोड में 3 रोज़ा नजरिया पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसका आज दूसरा रोज़ है। कॉन्फ्रेंस का मरकजी मौजू अफकार कायद-ए-आज़म और कौमी तामीर व तरक्की रखा गया है। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात शरीक हैं। कॉन्फ्रेंस में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जबकि मुख्तलिफ सेशंस में कौमी नजरिए, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इफ्कार और मुल्की तरक्की के तकाज़ों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, कायद-ए-आज़म की तालीमात वक्त की अहम ज़रूरत है। जिन्ना साहब की जो बात थी वो मुस्तकबिल की बात थी। पाकिस्तान का क़याम मुस्तकबिल के लिए था। पाकिस्तान का क़याम ये लाइट दिखाता था, ये रोशनी दिखाता था कि कितने सारे अफराद मुस्तकबिल में अपना बंदोबस्त क्या करेंगे। उनकी तकारीर में आईने पाकिस्तान की बुनियाद थी। तकरीब में MPA राना मोहम्मद अरशद ने पाकिस्तान के हालात पर रोशनी डाली। सेक्रेटरी इदारा नजरिया पाकिस्तान नाहिद इमरान गिल ने इदारे की काविशों पर तबादला ख्याल किया। तकरीब में पीर सैयद हैदर अली गिलानी, डॉक्टर इकबाल चावला, ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर लतीफ डार ने शिरकत की। मुजीबुर रहमान शामी, डॉक्टर परवीन खान, खालिदा जमील, शराफत अली खान समेत दीगर मौजूद शख्सियात भी शरीक हुई। मेहमानों को एजाजी शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन अहमद अली के साथ अरबाज खान, सिटी 42। चौधरी मोहम्मद नवाज लिदड़ ने बंगाली में तरक्याती मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मोजा रकपदरी मेनहाला रोड से रकपदरी कब्रिस्तान तक जाने वाला मरकजी रास्ता तामीर के मराहिल में दाखिल हो गया। इफ्तिताही तकरीब में MP 158 चौधरी मोहम्मद नवाज लिदड़ और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा चौधरी मोहम्मद रिजवान लिदड़ ने खासूसी शिरकत की। इस मौके पर चौधरी जैन शोकर, चौधरी साबिर नंबरदार, राना इकबाल भलरवान समेत इलाका मकीनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। चौधरी मोहम्मद नवाज लिदड़ ने कहा कि ये सड़क अहले इलाका का एक दरीना मुतालिबा था। खसूसन बारिशों के मौसम में आमदोरफ्त शदीद मुतासर होती थी और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद से जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई। जनूबी मुख्तलिफ अजला में पार्टी की तंजीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मॉडल टाउन में पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली मखदूम मुर्तज़ा महमूद से मुलाकात में नईमुल्ला शाहानी, जावेद वहीद शम्स एडवोकेट, जाम अबू हुरैरा, बरीरा एडवोकेट, रईस हमजा जैन बिन, राय सनाउल्ला, शब्बीर आसिफ गोपांग समेत दीगर मौजूद थे। मुलाकात चीफ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब अब्दुल कादिर शाहीन भी मौजूद थे। मुलाकात में जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला की तंजीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब का लाखों रजिस्टर्ड मेहनत कशों के लिए बड़ा रिलीफ। अमली इक़दाम का जायजा लेने के लिए इजलास राशन कार्ड की तकसीम से मुताल्लिक पेशरफ पर गौर किया गया। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी जुल्फ़िकार अली खल ने कहा, लाखों रजिस्टर्ड मेहनत कशों में मरीम नवाज राशन कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं, जबकि बाकी मुस्तहिकीन तक कार्ड की फ्राहमी के अमल को तेज़ किया जा रहा है। राशन कार्ड के जरिए मेहनत कश माहाना 3000 रुपये की सब्सिडी हासिल कर रहे हैं, जबकि वज़ीर आला पंजाब के ऐलान करदा रमज़ान घेबान पैकेज के तहत माह रमज़ान में हर मेहनत कश को राशन कार्ड पर 10,000 रुपये फ्राहम किए जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर ने शेख जायद अस्पताल लाहौर का दौरा किया, जहां चेयरपर्सन और डीन प्रोफेसर आयशा हुमायूं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर मुना अजीज़ गिलानी ने उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। सफ़ीर को अस्पताल में फ्राहम की जाने वाली जदीद तिब्बी सहूलियात और जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। UAE की सफ़ीर ने मुख्तलिफ वार्ड्स और शुबाजात बशमूल जिगर ट्रांसप्लांट यूनिट का दौरा किया और ज़ेरे इलाज मरीजों की आयादत करते हुए सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर सफ़ीर ने अस्पताल अमले के बच्चों के लिए कायम नए स्टेट ऑफ द आर्ट डे केयर सेंटर का इफ्तिताह भी किया। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर से DG 1122 बलोचिस्तान ने मुलाकात की। रेस्क्यू बलोचिस्तान के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराई गई। DG 1122 बलोचिस्तान मोहम्मद जुल्फ़िकार जतोई ने इमरजेंसी सर्विसेज हेडक्वार्टर्स और अकेडमी का विजिट किया। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर से DG 1122 बलोचिस्तान ने मुलाकात की। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना था कि वज़ीर आला को हिदायत पर रेस्क्यू बलोचिस्तान को हर मुमकिन मामद फराहम की जा रही है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।